Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine in your home. Using this one time for betterment of the study, and as well as you are improving yourself also, because you all are a psychology students, so it is very essential for you. So use this one time to improve your study, do better, and whatever lacking in your personality, improve that one particular characteristics or the quality. Whatever you are having, you're just thinking about ki yes, I want to improve this one in my personality. So this time is the best time to improve in your personality. So welcome you all again in a video lecture of a psychology. So let's continue the chapter number 9, developing psychological skill. In the last video we discussed about the topic related to counseling, that the characteristics those are effective for the helpers. हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करी थी, दोज आर इफेक्टिव होते हैं जो एज अ हेल्पर जब हम वर्क करते हैं. इसमें हमने 4 पॉइंट्स पे डिस्कशन करा था. द फर्स्ट वन इज़ अ ऑथेंटिसिटी, द सेकेंड वन इज़ अ respect for other, the third one is a empathy, and the fourth one is a paraphrasing. Let's take a review of these 4 things. Authenticity, I told you कि in a 2 perception we done our work. The first perception is ourself. I am a good dancer, I am a good teacher, I am this, I am that. In this one I am denoting myself. और दूसरा परसेप्शन क्या है? द सेकेंड परसेप्शन गिवन बाय द सोसाइटी, आवर फैमिली, आवर फ्रेंड्स. वो जो हमारे बारे में पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, हम उनका जो देखने का नज़रिया है. व्हेन वी एक्सेप्ट दैट वन थिंग विथ माई सेल्फ. फाइन, हमने इस पर बात करी थी सेल्फ अवेयरनेस पे. फाइन, कि इफ़ वी ऐड इन आवर पर्सनालिटी द परसेप्शंस ऑफ अदर्स लाइक द सोसाइटी, फ्रेंड्स और अ फैमिली और अ टीचर, सो डेफिनेटली दिस इज़ नोन एज अ self awareness. I am aware about myself, what the other are thinking about me. ठीक है, this one is known as a authenticity. The second one we discuss the term respect for others or the positive regards for others. Whenever we are doing a work as a counselor, as a helper, as a effective helper, the very essential thing is a positive regards for other. हमें हमेशा क्या करना है? when we talk to others, when we talk to our client, that time it is very essential for us to give a positive regard to our client. It will in your benefit also, because if you will do this one thing, the positive regard for others, definitely it is very easy for you to just take the information from your client. Fine. In the same manner, the third point is the empathy. As I already told you, what is the difference between a sympathy and a empathy. Sympathy related to when we saw anyone is in a difficulty, in a pain, so that time we feel the pity words. ठीक है, वहाँ पे हम उन्हें दया दिखाते हैं. This is known as a sympathy. And what is the empathy? When in a same condition we are putting ourselves in that one condition and just feel the feeling of the person. जब सिंपैथी में क्या करते हैं, हम खुद को उस जगह में रख के उस पेन को महसूस करते हैं. यहाँ पे हम पिटी वर्ड्स नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम सेम पेन को क्या कर रहे हैं, खुद महसूस कर रहे हैं. दिस इज नोन एज अ एम्पैथी. पैराफ्रेजिंग, in that one process of a communication, I told you the meaning of the paraphrasing. Paraphrasing के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस करा था. तो this paraphrasing is a very essential for the effective helper also. It will help you to take the information in a proper manner, in a meaningful manner, and this will help you to cope up with the client's problem. ठीक है, it will it will give you a help. Some ethics of a counseling course are also here. काउंसलिंग को लेके भी एथिक्स बने हुए हैं, और डेफिनेटली जब हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं तो हमें उनके एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़ जो होते हैं, एथिक्स, ऑल दीज आर कोरिलेटेड. ठीक है, इससे इनके साथ हमें वर्क करना पड़ता है. ठीक है, जो हमने किसी अपने पर्टिकुलर फील्ड के लिए कुछ वर्क करा है या कुछ नॉर्म्स बनाए हैं, कुछ हमारी वैल्यूज़ हैं, हमें उनके साथ वर्क करना पड़ेगा. इन द सेम मैनर नाउ डेज द काउंसलिंग इज़ अ वेरी वाइड एरिया. फाइन,
Very important steps are taken for the development for the professional identification. It is not only related to that one counseling related to a psychological aspects. Many more fields are there. A critical criterion for any professional group may be as a development for the appropriate ethical and standards. Social worker, ठीक है, मैरिज काउंसलर्स होते हैं, फैमिली काउंसलर्स होते हैं, एंड डेफिनेटली द साइकोलॉजिकल काउंसलर. फाइन. ऑल दे हैव द एथिकल कोड्स एंड बी अवेयर अबाउट द एथिक्स. मॉरल्स क्या हैं, हमें जिस भी हम पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं उसके जो एथिक्स हैं हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा. वाइल लर्निंग अबाउट द these all field as a counselor, the very important thing that is for us, and that is a client counselor relationship. As in the chapter number 5, I already told to you कि the client and the therapist था ना वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया. client and काउंसलर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फाइन. सो कुछ यहाँ पे द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ दीज एथिकल डोमेन्स गाइडलाइंस, कुछ प्रैक्टिकल काउंसलिंग के लिए कुछ पर्पस यहाँ पे डिस्क्राइब करे गए हैं. लेट्स टेक अ रिव्यू ऑफ दीज पॉइंट्स. द फर्स्ट थिंग, नॉलेज ऑफ द एथिकल और अ प्रोफेशनल कोड्स. एज आई टोल्ड यू, इफ़ आई एम अ टीचर तो इसके कुछ कोड्स हैं, इसके कुछ नॉर्म्स हैं, इसके कुछ इथिक्स हैं जो मुझे एज अ टीचर फॉलो करने होंगे. इट इज़ मैंडेटरी फॉर मी. तो सेम थिंग फॉर द जॉब ऑफ द काउंसलर ऑल्सो. फाइन. जो भी प्रोफेशनल कोड्स होंगे, हमारे स्टैंडर्ड्स होंगे, गाइडलाइंस होंगी, नॉलेज होगा, केस लॉ रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल ऑफ द साइकोलॉजी, दीज ऑल आर आ नेसेसरी टू वर्क एज अ हेल्पर और अ काउंसलर. ठीक है. रिकग्नाइज एंड एनालाइज द एथिकल एंड लीगल इश्यूज अक्रॉस द रेंज ऑफ द प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ इन अ क्लिनिकल सेटिंग. हमें हर चीज़ की क्या करनी पड़ेगी, रिकग्नाइज करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या है हमारे अक्रॉस चल रहा है उस भी एथिकल वर्क को लेके. ठीक. द थर्ड वन इज अ रिकग्नाइज द understand, we can say, the ethical or professional features of her or his attitude and practice in a clinical setting. हम जो भी ethical norms की बात कर रहे हैं उनकी हमने clinical setting में, मीन्स की थ्योरी की तो बात हो गई, लेकिन हमने प्रैक्टिकल सेटिंग में क्या करी हो, उसकी प्रैक्टिस करी हो. फाइन. Seek appropriate information and the consultant when faced with the ethical issues and the practical. ठीक है. Practical appropriate professional असर्टेनेटिव रिलेटेड टू आ एथिकल इश्यूज. और जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस टाइप्स के प्रोफेशनल तो वहाँ पे हमें प्रॉपर एथिकल इश्यूज क्लियर होने चाहिए. व्हेन वी डू और वी आर वर्किंग एज अ काउंसलर, एज अ हेल्पर, एज अ सोसाइटी हेल्पर, सो हम उसके जितने भी इथिक्स हैं, जितने भी हमने उसकी थ्योरीज बनाई हुई हैं कि हमें इस पर्टिकुलर फील्ड में ये वर्क करना है, हमें उन सब के क्या करने पड़ेगा, क्लिनिकल सेटिंग में टेस्ट करना पड़ेगा. मीन्स कि जब हम इसे जब आप किसी चीज़ को थ्योरी में पढ़ते हो तो वो कुछ अलग होती है, और जब हम उसी चीज़ को प्रैक्टिस में करते हैं तो हमारे सामने कुछ डिफरेंट पॉइंट आते हैं. इन द सेम मैनर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो हम जितनी भी हमने इस चैप्टर में बात करी, हमने उसे क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी क्लिनिकल सेटिंग करनी पड़ेगी. हमें उस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पहले सेटअप देखना पड़ेगा कि अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं ये वर्क करती हूँ तो इज़ इट अप्रोप्रिएट फॉर माई क्लाइंट और नॉट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है. ये जो अभी हमने बात करी, हमने बात करी थी एथिक्स ऑफ काउंसलिंग पे. ठीक है. काउंसलिंग को लेके कुछ एथिक्स बने हुए हैं और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करी फॉर द इफेक्टिव हेल्पर. एक थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं दिस वन चैप्टर का, बिकॉज जो भी हमने डिस्कस करा दैट वन इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ अ चैप्टर 9. ठीक है. सो ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर सेंडिंग योर वर्क, सो आई एम अगेन सेइंग टू यू today I am just requesting you to finish your work, watch the video. After that I will not give you time to do these things. Fine. You all this is mandatory for all to watch the video and do the given work. Fine. Because after 1 or 2 days I will start my practice. We will start the revision work, and if you are not serious about your studies, so definitely it will very typical task for you. So in this one chapter we told about the development of the effective psychologist,
कैसे डेवलप हो सकती हैं एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के लिए स्किल्स। कुछ तो जनरल स्किल्स होती है जो एज अ ह्यूमन बीइंग हम सभी में होती हैं। उसके बाद हमने बात करी थी ऑब्जर्वेशनल स्किल में कि कैसे ऑब्जर्वेशनल स्किल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू वर्क इन द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजिस्ट। थर्ड थिंग थी हमारी यस द स्पेशल चीज़, स्पेशल स्किल्स क्या होनी चाहिए, जिसमें हमने बात करी थी काउंसलिंग स्किल्स की। सेकेंड हमने बात करी थी करेक्ट दैट वन इंटरव्यूइंग स्किल्स, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, कैसे इंटरव्यूज स्टार्ट होंगे, इन सब पे बात करी थी। और थर्ड वन हमने बात करी थी काउंसलिंग स्किल पे। अगर आप एक हल्का सा रिव्यू दोगे काउंसलिंग के पे या फिर साइकोलॉजिस्ट के वर्क पे, तो देखो बेटा वो कम्युनिकेशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर बहुत अच्छी होंगी तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। अगर आपके अंदर ऑब्जर्वेशनल स्किल बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आप ईजिली डाटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो किसी की सिचुएशन को कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। एंड द सेम मैनर इंटरव्यूइंग स्किल, इफ़ यू हैव अ गुड इंटरव्यूइंग स्किल, so definitely you will do better in this one job. And the counseling skill, because at the end the counseling is a very important part for the psychologist, ठीक है। तो काउंसलिंग स्किल्स के बारे में हमने बहुत कुछ देखा पढ़ा। नाउ व्हाट यू विल डू, सेम मैनर you do your work in a notes, fine. So those are watching the videos, subscribe the channel. If you will subscribe the channels, so definitely after that I will know ki how many students are watching my videos, fine. Otherwise I will take a strict action for you, because it is not for in the benefit of me as well as for you. So watch the video and do the given work, fine. Thank you, have a nice day.